देखो बोले ମୁଁ ତୁମକୁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି ମୋଲ୍ କନସେପ୍ଟ। ओके ମୁଁ ତୁମକୁ ଫାଷ୍ଟ ବି କହିଥିଲି actually I have to use we have to use two concept. Okay, one is the mole concept, other is the equivalent concept. One is mole, other is what? Equivalent. Two concepts you have to use to solve all types of problems in the basic concept. I have already told you what mole concept. Today we will discuss equivalent concept. Equivalent concept. Actually, what is equivalent mass? What is equivalent mass? Equivalent mass means what? Equivalent amount. Equivalent amount in terms of mass means in terms of gram or milligram or kg. That amount of what? Mass. That amount of mass. Equivalent amount of mass. Equivalent amount. Mind you, equivalent amount of what? Mass. Equivalent amount of mass in terms of what? Milligram, gram or kg. So what is that amount? What is equivalent amount? How can you get? That depends on what? The equivalent amount means what? If we take that amount of substance, if we take that amount of substance in terms of a gram, milligram or kg, the reaction will be a complete reaction. If we take that amount of mass, the reaction will be a complete reaction. This is the main point. Follow or not follow? बुझले ना बुझले? तमे जदि इक्विवेलेंट मास और अमाउंट रो तमे सब्सटेंस यूज करिवो ताले रिएक्शन ता कंप्लीट रिएक्शन हो और के बळ करबे नाही। फॉर एग्जांपल देखो मन कर हम कहबी जे आई विल से a plus b give rise to c plus b, a plus b give rise to c plus b. ओके मन कर a गोट सब्सटेंस b गोट सब्सटेंस रिएक्शन करिवो रिएक्शन ता कंप्लीट रिएक्शन होबो केते if we take the equivalent amount of A and equivalent amount of B, if we take that amount and they will react, the reaction will be a complete reaction. After the reaction, nothing is left. It's a ball karaiba nahi. Remember, I equivalent amount to X, I equivalent amount to Y. The X amount ro A use karibo, Y amount ro B use kari reaction karibo, tale ka reaction the complete reaction of reaction after the reaction यही बड़ करेबे ना पूरा इक्वल प्रोपोर्शन इक्वल अमाउंट रिएक्शन बुझले तो मन कर हम कहि देखो मन कर हम गोटे एग्जांपल दो सुनो तुम गोटे रसगोल्ला तैयारी करियो रसगोल्ला को तैयारी रसगोल्ला कितना है तैयारी को आलू बैगन को करूना को अरे तैयारी को तो बोलो छेना चीनी में कंपोजिशन कोन छेना और चीनी मन गोटे रसगोल्ला करिया पे तोर 10 ग्राम दरकार कोन छेना 5 ग्राम दरकार चीनी मन 10 ग्राम छेना 5 ग्राम दरकार चीनी 5 ग्राम चीनी ओके 10 ग्राम 5 ग्राम रेशियो केते 2:1 रेशियो केते ला 2:1 दिभागर भागे मु जदी 50 अमाउंट रो छेना यूज करबी 25 अमाउंट रो व्हाट चीनी यूज करबी ताले प्रोपोर्शन का हो यूज हे जीवो पूरा यूज हे जीवो ना के बोलिबो पूरा यूज हे जीवो किंतु मु जदी जणा को 50 यूज करबी जणा को 30 यूज करबी चीनी को 30 अमाउंट यूज करबी दरकार एक्चुअली केते 25 बोलिबो केते 5 बुझले तो 30 नॉट इक्वल अमाउंट एक्चुअली इक्वल अमाउंट कोडा 25 हला आर होची 50 तार केते 25
সেটা হচ্ছে ইকুয়াল অ্যামাউন্ট, সেটা হচ্ছে কম ইকুয়াল প্রপোর্শন অ্যামাউন্ট, ইকুয়াল প্রপোর্শন অ্যামাউন্ট। Clear or not clear? If we take that amount of substance, the reaction will be a complete reaction. After the reaction, nothing is left. It's about the reaction is সম্পূর্ণ reaction is. Am I clear? বুঝলো না? আচ্ছা, তাহলে ইকুয়াল অ্যামাউন্ট তো ডিপেন্ড করছে কার উপরে? How can get equivalent amount? How can get equivalent amount? That depends upon in which fraction, in which proportion that react to the other substance. মনে করো এই substance বলতে equivalent amount কেতে সে ডিপেন্ড করছে কো প্রপোর্শন রে রিঅ্যাকশন করছে তাকে দি n ফ্যাক্টর তো দেখো n ফ্যাক্টর তাহলে হোয়াট ইজ প্লে n ফ্যাক্টর? তাহলে n ফ্যাক্টরটা কিন্তু হাউ ক্যান গেট n ফ্যাক্টর? n ফ্যাক্টরটা ডিপেন্ড করছে the nature of the reaction of substance. Nature of reaction. So substance টা কোন টাইপর রিঅ্যাকশন শো করছে সে রিঅ্যাকশন উপরে ডিপেন্ড করছে। বুঝলেন কো? তো গোটে substance র n ফ্যাক্টরটা ফিক্স নয়, গোটে substance র n ফ্যাক্টর एक्चुअली ফিক্স নয়। বুঝলেন কো? রিঅ্যাকশন যদি ভ্যারি করিব n ফ্যাক্টর কব ভ্যারি করিব চেঞ্জ হবে। বুঝলেন কোন করে কইবি এটা কোন এক্সাম্পল দিচ্ছি নাইট্রিক অ্যাসিড এক্সাম্পল দিচ্ছি এচএনও এটা কোন নাইট্রিক অ্যাসিড আর নেচর দুইটা নেচর আছে ये डी पर नेचर शो करिबो। बुझले को गोटो नेचर कोन है एटा कोनटा एसिड ना ना एसिड ना बेसटा हला तार आउट नेचर अछि कहले कोन आउट नेचर कोन नाइट्रिक एसिड र आउट नेचर अछि कोन कहले की कहि परबो दिस आल्सो एक्ट एज नोजन टू ऑक्सीडेंट बोले ऑक्सीडेंट व्हाट इज ऑक्सीडेंट आई विल टेल यू later नेचर कोन एसिड व्हाट it's the oxidant is what শুনতো না তাহলে পচা গেল পুরো হচ্ছে এসিড এন্ড হোয়াট কোন অক্সিডেন্ট যদি এচএনও যেটা এসিড আকারে বিহেভ করিব তা এন ফ্যাক্টরটা যাহা হবে যদি অক্সিডেন্ট কে রিঅ্যাকশন করিব এন ফ্যাক্টরটা সে হবে কি এন ফ্যাক্টরটা ডিফারেন্ট তো তমুকো আইডেন্টিফিকেশন করে পড়িব ये কো টাইপ রিঅ্যাকশন শো করছে एसिड আকারে বিহেভ করেছি না অক্সিডেন্ট আকারে বিহেভ করেছি বহুত ইজি প্রবলেম কিছু নাই তার মানে যদি এস অফ দ্য রিঅ্যাকশন করছে প্রোডাক্ট সি আউট ডি দেখো তুমি কোন চেঞ্জ হইছে তার কোনটা চেঞ্জ হইছে এন ফ্যাক্টর তারপরে ডিপেন্ড করছে মানে কোনটা চেঞ্জ করি কি রিঅ্যাকশন করছে যত আরাম সে আইডেন্টিফিকেশন করি প্রবলেম কিছু নাই যদি এস অফ দ্য রিঅ্যাকশন করছি বুঝলে কোন সে সি আউট ডি দউছি তার কোনটা চেঞ্জ হইকি কোন রিঅ্যাকশন হইছে যাহাটা চেঞ্জ হইছি তারপর ডিপেন্ড করছে কোটা এন ফ্যাক্টর বুঝে দিন ঠিক আছে প্রকার বুঝলে কোন তার মানে কোন ফ্যাক্টর চেঞ্জ করি কি রিঅ্যাকশন হইছে বুঝলে কোন কোন ফ্যাক্টর চেঞ্জ করি কি রিঅ্যাকশনটা হইছে তারপর ডিপেন্ড করছে কোটা এন পাওয়া তো বুঝি ইকুয়ালেন্ট মাস ইকুয়ালেন্ট अमाउंट ডিপেন্ড করছে কার উপরে এন ফ্যাক্টর एन फैक्टरটা डिपेंड करछ का ऊपर नेचर ऑफ द रिएक्शन क्लियर थिंग द कोन गली गलो इक्विवेलेंट अमाउंटটা डिपेंड करछ का ऊपर एन फैक्टरটা डिपेंड करछ का ऊपर नेचर ऑफ द रिएक्शन तो माइंड रहो का ऊपर लास्ट पॉइंट कोन नेचर ऑफ द रिएक्शन बुझलो तो द नेचर ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होबो তাহলে एन फैक्टर का होबो डिफरेंट होबो एन फैक्टर डिफरेंट होबो তাহলে इक्विवेलेंट अमाउंट का होबो डिफरेंट होबो clear not clear am I clear not clear বুঝলেন তো তাহলে how can get equivalent mass because equivalent mass equal to atomic mass without the atom or molecular mass of the substance you know molecular mass or not ଗୋଟେ substance ର molecular ତ ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନ ମନେ କର କହିବି ଏଚଏନ ଅଛି ତାର molecular mass କେମିତି ବାହାରିବ ହବ କି ନାହିଁ ଲାଇଟ আর କେତେ কোন ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କେତେ 1 14 16 into 60 हैं 60 63 লেখো দাও 14 हां केतला 63 লেখো দাও molecular mass equivalent mass equal to molecular mass or atomic mass by n by what n company equivalent mass equal what company molecular mass by or atomic mass by what n for all cases
equivalent mass कितना है? Equal to what? Molecular mass by what? N. Equivalent mass. Equivalent mass equal to what? Molecular mass by what? N vector. और atomic mass by N vector. अच्छा मतलब मतलब पहले कोई ना ताले molecular mass you know ना ऐसे चेंज होता है बार बार पूरा substance और molecular mass तो fix ना चेंज होता है always fix let's go fix এটা তো জানিস তো তার হ্যাঁ তো দি how can get it equivalent mass that depends on what it is most important n अबे फोकस करे कहाँ पर n factor depend करता कहाँ पर nature of the reaction nature of the reaction depend करता कहाँ पर nature of the substance से substance nature का से कोड टाइप ऑफ substance और से कोड टाइप reaction सो कर गए मुझे देखो कोड टाइप ऑफ substance से कोड टाइप reaction सो कर गए मुझे देखो तो रिएक्शन सो तो जानी पेलो n factor जानी पेलो equivalent mass जानी पेलो अरे क्लियर कि नॉट क्लियर ओके मु तो फाइनली क्लियर you have to use in the reaction in the inner reaction you have to use mainly 6 types of substances कितना substance कहते हैं 6टा फोकस रखा आपने 6टा कितना substance 6 6टा को तो फाइंड करता है कौन गोटे होची मेटल कौन मेटल आराम से कहते मंडो मेटल मु तो मंडो के देखते मेटल और कौन मेटल एसिड मेटल को के एसिड बुझे देखो मेटल एटा लाइक नोट करता बुझे देखो 6 सब्सटेंस कौन कहली मेटल एसिड बेस ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट एसिड बेस तो जानिछो एसिड ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट जानिछो मेटल जानिछो लास्ट पॉइंट इज सॉल्ट कोन हला एतिक ओनली दिस 6 सब्सटेंसेस कोन को कहली को metal acid base salt oxidant only these 6 so we have to find the n factor of these 6 substances we have to use what only what n factor of these 6 substances एक छोटा सब्सटेंस हमें मतलब n फैक्टर बात करेगा ये भी मेटल भी थे ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट इंक्लूड ही होची कथा को सेपरेट कर दीजिए क्लियर नॉट क्लियर हाउ मेनी सब्सटेंस व्हाट 6 कौन मेटल एसिड बेस सॉल्ट ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट 6 सब्सटेंसेस क्लियर नॉट क्लियर पहले फर्स्ट पॉइंट होची मेटल पहले फर्स्ट पॉइंट এটা নোট করব ইকুইভ্যালেন্ট মাস ইকুয়াল টু ইকুইভ্যালেন্ট মাস পহলে ইকুইভ্যালেন্ট মাস means what equivalent amount of a mass equivalent amount of a mass in term of whatever mass term you can use any unit you can use milligram kg gram anything you can use equivalent amount in mass in term of mass okay तुम्हें जते क्लियर थ्योरी टा बुझिबो तो नॉलेज का सेते क्लैरिटी आसीबो तुम्हें अप्रोच सेते इजी हे जिवो मु थ्योरी टा एते क्लैरिटी रे बुझियार कारण होची तुम जते थ्योरी टा जते क्लियर हे जिवो तुम क्लैरिटी नॉलेज से क्रिएट हे जिवो तो ऑटोमेटिक अप्रोचिंग ठीक हे जिवो तो कंफ्यूजन एरर टा कम जिवो पूरा एरर टा मुझे एरर लेस जो हला एबे कोइ क्लियर कर दिछु बुझो दिछु तमे जानिछो मुदा कथे बुझो काहे के तमे जिंसो केमति आनिछो मु तो के अप्रोच तो एटा देखो इथुडा जा चलो तले मु कोन कहली इक्विवेलेंट मास इक्वल व्हाट कोन कहली एटॉमिक एटॉम दा एटॉमिक मास मॉलिक्यूल दा व्हाट मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास बाय व्हाट n पहले n वेक्टर
एन फैक्टरटा कहार केते एन फैक्टर माने कोन माने को बेसिस रे से सब्सटेंस टा रिएक्शन करूची माने कोन चेंज करगी रिएक्शन होउची तार कोन से सब्सटेंस रो जो रिएक्शन करूची तार कोनटा चेंज होउची तो चेंज करतो ना रिएक्शन माने कोन रिएक्शन माने कोन चेंज होउची से कोनटा चेंज रिएक्शन करूची केटे चेंज रिएक्शन माने कोन से चेंज होगा माने तार फिजिकल चेंज किछ हो तार कोनटा चेंज हो तार चेंज कर दो तार चेंज टा कोन जुगुर चेंज होची बुझले को छेडे तर इनपुट सेटा तर बुझलो तो ताले कोन कहली गोटाला को मेटल एसिडिक बेस सॉल्ट ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट ये छोटा सब्सटेंस हम ये पेपर बाहर करिए से जानि चल ओके ले देखो मेटल रो एन फैक्टर केते ना तो वैलेंसी के चेंज रिएक्शन होबे कौन चेंज रिएक्शन वैलेंसी चेंज करे बुझलो तो एटा खाली मु शॉर्ट लिखि दोची तापर मु वन बाय वन डिस्कशन करी एसिड मेटल कोन गली एसिड का ऊपर डोनेट H plus और accept OH minus H plus will donate और OH minus accept এটা কোন বেসিসিটি এসিড रो जो बेसिसिटी मु डिटेल डिस्कशन बेस और व्हाट एसिडिटी सॉल्ट रो कौन चेंज हुए radical change हुए radical माने द डिपेंड विथ द टोटल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज टोटल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ताहले गोटा धरिबो आइदर प्लस और माइनस ताहले गोटा धरिबो बोथ धरिबो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ले ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट रो मु ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढला पर लास्ट थिका को मु ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढला पर पता चार्ट डिस्कशन कोन मेटल होच व्हाट वैलेंसी एसिड रो कोन बेसिसिटी बेस रो एसिडिटी सॉल्ट रो व्हाट टोटल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट मन रे तुम रेबन चारटा सब्सटेंस मन रे आराम से हला एटा इंपोर्टेंट आपन बेसिक जिंस किछ नै जिंस मेन बुझले मेटल बाय वैलेंसी एसिड रो बेसिसिटी बेस रो एसिडिटी सॉल्ट रो व्हाट टोटल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव क्लियर नॉट क्लियर नेक्स्ट ले फर्स्ट कोई बात मेटल फर्स्ट कोई मेटल ले मेटल तार एन फैक्टर केते कोई देखो मेटल इज वन आटम मन करा आयरन केवल सोडियम मुझे केवल सोडियम रे देखो एन फैक्टर केते ओनली सोडियम रे फैक्टर केते ये रिएक्शन कर छी तो खाली सोडियम लो बचली रिएक्शन किछ कर छी तो जीरो किछ रिएक्शन कर छी तर को चेंज किछ चेंज तर जीरो किछ नहीं अरे इनपुट को जीरो हैला तर ये रिएक्शन किछ कर छी कि तो मु कहि Na plus 1 to produce NaOH plus देखो एटा कोन चेंज एटा कोन चेंज एटा सोडियम और चार्ज केते जीरो एटा चार्ज केते प्लस प्लस नॉट चेंज तर कोन चेंज हिची चार्ज चेंज केते चेंज हिची वैलेंसी चेंज तर कोन चेंज हिची वैलेंसी बुझु छ देखो तमारे एटा सर मेन पॉइंट तो खाली मन रखो माइंड रखो जे मेटल इक्वल मास केते ला इक्वल मास मेटल इक्वल व्हाट ता एटॉमिक मास डिवाइड कर वैलेंस माने वैलेंस अनुसार से चेंज वैलेंस अनुसार चेंज और ये मतलब तुम पढ़े तो क्लियर हो जाए पिला एटा जानि छथि आ इक्वल मास को अटेंडेंस वैलेंस तो नहीं किंतु केमिति यूज कर जानना है तो तुम किंतु गोल कर देते हो ठीक है पढ़ जाए और ये पढ़ला नहीं लेकिन भूल करो तो कौन कर इक्वल मास के दो एटॉमिक मास वे व्हाट ओके तो अगर एक्चुअली इक्वल मास सपोज सोडियम जदि रिएक्शन करिवो हैला मैक्सिमम बैलेंस करके दवा नहीं करिवो मैक्सिमम बैलेंस के 1 नहीं तो दबो ना एटॉमिक मास पे 1 अगर बस 23 1 के दे इक्वल मास एक्चुअली रिएक्शन को लगा पड़ी बुझले मैग्नीशियम के दबो एटॉमिक के 24 एगुन लेकिन सकते बाय 2 के दबो फॉर रिएक्शन तो जानी तो पर जानी को उदाहरण को बहुत दिस पूरा क्लियर दिन सुन हला लगा इक्विवेलेंस ऑफ आयरन के दबो
आयरन देखो 56 30 बस बाई केते ता भलेंसी फेरस हे पर फ्री की पर फेरस हे पर फेरी की पर ता कोन यूज करिवो फेरस रो 2 फेरी रो 3 लेकिन करिवो रिएक्शन अनुसार ए तो हेटा कहली तमे यूज करो कोन सारे रिएक्शन अनुसार रिएक्शन फेरस हे के छी बाई 2 फेरी की को छी बाई 2 बुझने को तो नजर पक्का पे मो प्रथम रो कहची to get economy that depends upon what n factor depends कहां पर reaction बुझले को से सब्सटेंस को टाइप रो रिएक्शन करछ माने तार कोनटा चेंज हेछि बुझुतले को तो फेरस पेन टू फेरिक पेन 3 that depends on the reaction मतलब तो by 2 पर by 3 पर by 2 और by 3 तो equilibrium is fixed or variable depends upon what n factor अच्छा मत पहले कहलो एसिड रो कोन n factor ऑफ एसिड रो कोन अरे कोन आगे मो थ्योरी टा बुझी सला परे तापर न्यूमेरिकल बुझबा हैना एसिड रो कोन बेसिसिटी मतलब बेसिसिटी मींस व्हाट एसिड का कहते एसिड रिएक्शन जने एसिड रिएक्शन तो निजे से तक जानि पड़ो आंसर एसिड रिएक्शन कोन तत्व चेंज हो कोन H plus donate H plus or accept OH minus 4 molecule गोटे molecule मतलब सिंगल molecule डिवाइड हो सिंगल सब्सटेंस ओनली सिंगल सब्सटेंस इक्विवेलेंट मास और कहार ए सिंगल सब्सटेंस 4 molecule so always 4 molecule always you have to use 4 molecule गोटे molecule गोटे सिंगल molecule H plus and OH minus केते रिप्लेस करबो किबा एक्सेप्ट करबो दैट इज कॉल्ड व्हाट n factor कोन लिखो लिखो नंबर ऑफ H plus दोने और OH minus accept always formal so something formal good table valency balance हेले सुधा you have to use formal देखे दे बस्ता you have to use what formal good substance रो गोटे molecule तक देखे चेंज माने सिंगल सब्सटेंस केता चेंज करछ गोटे सब्सटेंस केता चेंज करछ सेट मेन पॉइंट ओके कोन बोली नंबर ऑफ व्हाट H plus and donate or OH minus accept ओके पहले देखो मन पर कोई HCl एसिड पहले कलो एटे n फैक्टर केते परिबो अरे एक्सप्रेशन केतरा अछि गोटे अछि तो n फैक्टर केते हो 1 तो इक्विवेलेंट मास केते हो ना ता मॉलिक्यूलर मास बाय 1 करो HCl बुझले नि 36.5 के देखो ओके अच्छा पहले कलो H2SO4 आर केते हो रिप्लेसेबल एक्सप्रेशन केतरा एक्सप्रेशन से दी परिबो केतरा परिबो अरे कोन केतरा टाइप परिबो तो मैक्सिमम टू के हम कहीं कहली 1 भी पारे 2 भी पारे अरे कोई पारे 1 भी पारे 2 भी डिपेंड करछ कहा पर रिएक्शन गोर प्रथम को जी डिपेंड करछ कहा पर रिएक्शन मैक्सिमम तो जो 2 को चाहिए मैक्सिमम था 1 भी पारे 2 भी पारे 1 भी होबो माने नहीं 1 भी 1 मैक्सिमम बी क्लियर नॉट क्लियर बुझा कुछ इंपोर्टेंट मन ओके मैक्सिमम ओके ओके नाइट्रिक एसिड चलो maximum 1 अच्छा प्ले करो एसिडिक एसिड CH3COH
actually this hydrogen nature is not acidic. Only this hydrogen is acidic. ମୁଁ ତଥାପି ତମକୁ ମୁଁ एसिड बेस पढ़ला पर पढ़ेबी तो पछर पढ़ेबी खाली वर्तमान प्रेजेंटली खाली कह दूची एसिड हाउ टू आइडेंटिफाई एसिड बेस इफ हाइड्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन what oxygen that hydrogen is replaceable that nature is acidic hydrogen attached to carbon nature is not acidic why I will tell them later बुझने को काई तो पछर कहबी ओके हाइड्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन नेचर इज व्हाट एसिडिक बुझे चले को एटे हाइड्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन हमने ऑक्सीजन वन ऑक्सीजन तो बेसिसिटी मैक्सिमम कितना हो अरे कौन बेसिसिटी मैक्सिमम कितना हो और एन पेट्रो मैक्सिमम कितना भाई का जिंस बेसिसिटी मैक्सिमम कितना हो और नो कितना वन because this hydrogen is replaceable but this hydrogen is not replaceable पहले देखो मन करो मुझे क्या हाइड्रेटेड ऑक्सिलिक एसिड आज जो फॉर्मूला था हाइड्रेटेड ऑक्सिलिक एसिड मु पचार ये सब्सटेंस रो एन फैक्टर केते पहले जो रिएक्शन करिवो आइदर दिस हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड और दिस हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड but this hydrogen cannot be replaced तो ये n factor के तो अरे कौन 2 over 6 हो मैक्सिमम ला कंफ्यूजन नहीं है ये के तो 2 हो कारण this hydrogen what is not replaceable किस हो only this one now this one बुझो जने को तो ये n factor के तो n factor don't be confused हेला अच्छा प्ले करो H3PO4 मैक्सिमम H3PO3 मैक्सिमम ता काहे की तोन के बोलछ H3PO2 मैक्सिमम के तो रीजन को दो मैक्सिमम 1 क्लियर एटा बुझे दो दिला देखो और 3 केमती 2 केमती 1 केमती देखो तो एसिड बेस पढ़ा डिटेल पढ़ी भी तुमको बटन पे देखो तो द स्ट्रक्चर को ड्रा करे पड़ियो तो मु स्ट्रक्चर टा ड्रा करबी एक्चुअली तो बुझिया मन रखे पे स्ट्रक्चर टा को तमे बुझिया पड़ी मन रखे दरकार किछ तमे भी फटाफट ड्रा करियो प्रॉब्लम किछ नहीं बुझो तो किंतु स्ट्रक्चर टा हम को बुझिया पड़ी एटा 3 केमतेला 2 केमतेला 1 केमतेला तेले बुझे दो सुनो हला ले देखो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट थ्योरी कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस ऑक्सीजन सल्फर कि हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ओके कार्बन टोटल बॉन्ड शुड बी 4 Carbon can make 4 covalent 0 coordinate bond. Carbon को करिवो सारीटा covalent bond करिवो आ coordinate bond केते करिवो 0 करिवो नाइट्रोजन 3 1 तमाने 3 covalent 1 coordinate ऑक्सीजन सल्फर डिटेल पढ़ी पछे बॉन्डिंग पढ़ला ठीक है 2 + 2 Tony, 2 covalent, 2 coordinate. What is the body? Bonding पढ़ते हैं और एक क्लियर बुझ पे 2 covalent what? 2 coordinate. Halogen 1 covalent. अरे कौन? 3 coordinate. अरे क्लियर कि नॉट क्लियर? बुझला को? एक बता. तो स्ट्रक्चर तो फटाफट रख दे. मतलब मुझे भी H3PO4 it is center atom is phosphorus can make how many bond maximum 4 according to octet theory can make 4 bonds to become octet not other theory according to octet theory and बुझियो चले को 4 bonds 3 covalent what 1 covalent
সতেরো প্লে কলা কোন ব্যাপারটা কোড কি এলো ইলেকট্রন পেয়ার ডোনেট করেছি আচ্ছা ইলেকট্রন পেয়ার কি অ্যাকসেপ্ট করব হাইড্রোজেন না অক্সিজেন অক্সিজেন আউট ইলেকট্রন কত আছে 6 যদি পেয়ার অ্যাকসেপ্ট করে কত 8 হবে না হাইড্রোজেন অ্যাকসেপ্ট করব অক্সিজেন তো কোঅর্ডিনেট বড় অলওয়েজ টুয়ার্ডস হোয়াট অক্সিজেন অলওয়েজ টুয়ার্ডস অক্সিজেন এটা অলরেডি অক্টেট তো কোঅর্ডিনেট অন টুয়ার্ডস হোয়াট must be oxygen okay अच्छा how many oxygen left 3 1 2 3 it is bond bond 1 এটা কত 7 হলো এটা কি দেবো হাইড্রোজেন चलो आउट तो बहुत सारी डिटेल्स कोई तुमको एक one coordinate bond equivalent to one double bond one what double bond one what double bond प्ले एसिड रो आइडेंटिफिकेशन जे एटा कंपाउंड रे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देबो माने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एटा सिओ थिबो एटा थिबा दरकार ऑक्सीजन एटा नथले सी डबल एटा मेन पॉइंट एटा थिबा दरकार काहे कि तू एसिड पढे तो पढे एटा तुम क्लियर बुझि देबी इट्स दरकार 5 बॉन्ड ऑक्सीजन थिबा दरकार তাহলে এটা সিও এটা ফার্স্ট পয়েন্ট বলে এসি ডবল বুঝছো তো তোমার সাথে রোটি হাইড্রোজেন আটা অক্সিজেন সবাই এসি ডবল সেটা হবে দেখে সাইন্সে শুরু দেখে দিতে হবে চলো যদি এটা কন্ডিশন ফার্স্ট কন্ডিশন স্যাটিসফাই করলাম ফার্স্ট কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করলাম আরে বুঝছো দেখো মুজ হাইড্রোজেন আটাচ টু অক্সিজেন হাইড্রোজেন আটাচ টু অক্সিজেন নেচার ইজ হোয়াট অ্যাসিডিক তো না নেচার ইজ অ্যাসিডিক কেমনে পসিবল আর নেচার ইজ অ্যাসিডিক আর নেচার ইজ অ্যাসিডিক So how many acidic hydrogen? How many acidic hydrogen? 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Clear or not clear? So maximum acidity कितना हो? अरे कौन? Maximum कितना हो? 3 हो? 3 हो तो क्या फिर बोली? अच्छा प्ले करो you take H3 pure the phosphorus can make 4 bonds one coordinate also equivalent to one double bond with what oxygen let us CO this must be there so how many oxygen left only 2 What oxygen पड़ेगी अधिक oxygen 1 2 ऐसे कौन तल जोड़ होगा oxygen जोड़ होगी only hydrogen बुझलें सब मुंह कौन कोई चीज condition one satisfy कला nature जी acidic nature जी acidic हाइड्रोजन अटैच ऑक्सीजन कंडीशन 2 satisfy कला बुझले को सो दीस टू नेचर व्हाट करो एसिडिक बुझले को बट हाइड्रोजन अटैच टू फास्फोरस कैन दिस नेचर एसिडिक सो दिस इज नॉट एसिडिक हाइड्रोजन दिस इज नॉट व्हाट एसिडिक हाइड्रोजन तो रिप्लेसमेंट कितना होगा ओनली 2 अरे क्लियर कि नॉट क्लियर ना बुझले नहीं मिले कॉलो H3PO2 phosphorus can make 4 bonds 3 covalent 1 coordinate 3 covalent 1 coordinate you may change 1 coordinate equivalent 1 double bond so condition one satisfied 1 coordinate bond equivalent to 1 double bond okay so how many oxygen 2 oxygen 1 already gone only 1 left ओके पहले टेक कौन जॉइंट होगा ये तो श्योर जॉइंट होगा ना हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जॉइंट अरे क्लियर कि नॉट क्लियर ओनली दिस हाइड्रोजन नेचर इज व्हाट एसिडिक एटा कंडीशन 1 कंडीशन 2 सो दिस नेचर इज व्हाट एसिडिक और दिस नेचर इज नॉट एसिडिक दिस नेचर इज नॉट एसिडिक तो मैक्सिमम एसिडिक कितना 1 मैक्सिमम तो 1 क्लियर कि नॉट क्लियर बुझले ना बुझले
মনে করো কবি যে H2SO4 সালফারিক অ্যাসিড সালফার can make two covalent two bonded bond changes to double bond তাহলে কন্ডিশন 1 স্যাটিসফাই করলাম পাইবন্ড অক্সিজেন अब पाइबोड ऑक्सीजन যেতে অধিক রইব এসিড এর সাথে অধিক শক্তি তো কই পছরা বহুত বড় পাঠ আরে বুঝলা বুঝলা টু অক্সিজেন লেফট 1 to 2 ওকে হাইড্রোজেন 2 মোস্ট অ্যাটাচড টু এটা কন্ডিশন 1 স্যাটিসফাই করলাম কন্ডিশন 2 স্যাটিসফাই করলাম নেচার ইজ व्हाट एसिडिक तो ना नेचर इज एसिडिक और नेचर इज एसिडिक क्लियर cannot clear देखो মনে করো কই যে অর্থোবোরিক অ্যাসিড H3BO3 অর্থোবোরিক অ্যাসিড পহলে বর্তমান মুখ পচারিবি আর বেসিসিটি কেন তিনটা হাইড্রোজেন আছে দেখো 3 হবে কি দেখো বি actual স্ট্রাকচার হচ্ছে বি weights ये तो हाइड्रोजन अटैच्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन अटैच्ड ऑक्सीजन बेसिसिटी शुड बी 3 kind of condition 1 টা satisfy কর আরে বুঝলে পাইবন্ড ওটা আছে কি আরে ডবল অক্সিজেন এটা আছে কি বুঝলি কো সো দিস হাইড্রোজেন নেচার ইজ what not acidic not what acidic our nature ta acidic in this hydrogen nature is what not acidic but indirectly this comes to acidic nature why you can say boron makes how many bonds 3 bonds whether it is octet or not octet এটা octet কি not octet আরে বন্ড হইছে তিনটা ইলেকট্রন হচ্ছে 6টা হবা কথা কেতে 8টা এটা হইছে বন্ড কেতে 3টা ইলেকট্রন কেতে হচ্ছে 6টা অক্টেট বে কেতে করে 8টা বুঝলেন অক্টেট আর নট অক্টেট নট অক্টেট মানে ইলেকট্রন ক্যান accept আর ইলেকট্রন ক্যান accept ইলেকট্রন ক্যান what accept আর yes or no আর ইলেকট্রন কেতে হচ্ছে 6 হচ্ছে it should be 8 by accepting 2 electrons one pair of electrons বুঝলেন কো how can accept you can we OH on whole phase में लिख we OH on whole phase you added to water hello it accept OH minus donate what H plus তাহলে কত হলো B OH whole 4 minus কারণ হচ্ছে মেটাফোর এটা দেখো মেটাফোরেট লস ম্যাক্সিমাম 4 হলো তো এই সাবস্টেন্সর বেসিসিটি কেতলা আরে কোন it can either accept one OH minus or donate what one H plus one OH accept or one H plus donate যেমনি বলি দেব আনে কোন মেটাফোরেট clear কি নট ক্লিয়ার এক্স্যাক্টলি সেম কনসেপ্ট মনে করো অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড বর্তমানে বলি কলে তিনটা মনে হইছে আগে মনে হবো গোটে বড় কোন দরকার only accept how many OH minus only one আরে কোন দরকার Al OH minus তো নিচে এটা কই পাবো কোন और बेटा अल्यूमिनेट बेसिसिटी के तो 1 तो ने एसिड आकर बिहेव करे बेसिसिटी 1 और बेसिसिटी 1 नाउ देखो जिंक हाइड्रोक्साइड और नीचे को बॉन्ड शुड बी 4 এটা বন্ড কত থিটা কত করে আউ থিটা করে হাউ added to 1 क्लियर or not clear দেখো কল Zn OH of whole for 2 minus বুঝলেন আনে কোন জিঙ্ক এটা না করে
जिंकेट एटा एमिति लिखि परिबो ताको ZnO2 2 माइनस डॉट यूज करके देखा जिनिस अरे बुझला ना निको एटा बेसिसिटी केतला 1 and 2 तो एटा कोन एसिड एकर जति बिहेव करूची एटा 1 होची एटा 1 होची केतो होची एटी क्लियर कि नॉट क्लियर अरे बुझी पड़तो ना बुझी पड़तो हला बुझला बुझने पहले नेक्स्ट क्लियर कि नॉट क्लियर मन कर कोई भी सल्फर डाइऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड आ नेचर होची एसिड की नेचर एतर का एक्सप्रेशन अछि कि एतर एक्सप्रेशन अछि कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस मो पचर कि जदि एसिड के बिहेव करबो एटे n पेट्रो केता बता जदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मो तो पचर कि तर n पेट्रो केता हो मैक्सिमम पिला कंफ्यूजन है केता हो बुझल केता हो के करबो जदि कार्बन डाइऑक्साइड का गोटे एसिड के बिहेव करबो कोन कलो जदि से वाटर रे कंबाइन करबो तार फॉर्म कार्बनिक एसिड बने H2SO ना बुझले लिखो एसिड के बिहेव करेगा वाटर कंबाइन करबो ये भी वाटर कंबाइन करबो अब सीधा वाटर कंबाइन कर दो तब वाटर कम को H2SO आर जा से आर के दे आर जा से आर के देखो ना बुझले नहीं केता हो कोन तो आर एन मोटल मत परहाप्स बुझले बुझले तो आर एन फॉर 2 तो कार्बन एक्चुअली ये था ये सेकंड दिन ये था ये एन को H2SO4 SO3 अरे बुझला ना बुझला नहीं को तो कार्बन डाइऑक्साइड रे इन्वेक्टर केते आ कंफ्यूजन हो कि केतो जदि से को करे बिहेव करबो जदि एसिड करे बिहेव करे देखिबे त मु एटा जानला पर तो देखो रिएक्शन तो बुझी पर पूरा क्लियर बुझी पर पिला जानि परंत ना एक्चुअली इनपुट केमिति बाहर बोली कि सेटा ही टेंशन हो जाए जदि कोन तो धरबी कोन धरबी मु तो कहसे ऑलरेडी प्रथम कहसली कोन फास्ट कलो n पेट्रो कितना मारिबो तीनटा पड कोइ फास्ट कोन कोइ इक्विलिब्रियम से डिपेंड करछ का पर n पेट्रो डिपेंड का पर नेचर ऑफ द रिएक्शन और नेचर का बोली एसिड करके मारिबो तो ऑलरेडी क्वेश्चन छी नंबर ऑफ H plus and donate or OH minus very simple and now next तो माइंड रखो जे कोड रिएक्शन से सॉल्व करछ और कौन चेंज करछ ओके इट इज मेन पॉइंट ले नेक्स्ट पॉइंट बेस ले बेस है कौन acidity means what number of कौन उल्टा OH minus donate or H plus an accept 4 molecule सब कॉन्सेप्ट से क्लियर बुझो से जैसे मु इत्ते दिन कहीं कहूँ कि n पेट्रो एक्चुअली इंपोर्टेंट n पेट्रो जब क्विकली आइडेंटिफिकेशन कर दबो प्रॉब्लम से जल्दी सॉल्व हो न्यूमेरिकल से जल्दी सॉल्व हो तो n पेट्रो बागले कंफ्यूजन हो तो प्रॉब्लम से सॉल्व करियो इट इज प्रॉब्लम बुझो जने को नंबर ऑफ व्हाट OH माइनस डोनेट और व्हाट कोन करी अरे समझ दे कोन H plus and what क्लियर कि नॉट क्लियर अच्छा मतलब क्लियर करो सोडियम हाइड्रोक्साइड और नेचर है कौन एसिड ना बेस बेस भाई डोनेट व्हाट OH माइनस n पेट्रो कितना हो वेरी गुड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड हो OH माइनस कोई भी तरह का
मु एसिड रे कहते एसिड रे कहते एक्चुअली नेचर होचे अम्फोटरी नेचर व्हाट केमिति यूज करबो तुम टिके पर हला देखो अम्फोटरी नेचर हला एटा के तो बेस करके दो बेस कर बेस कर 3 हो हां नेक्स्ट मुते के सेंस मने करो अमोनिया अमोनिया ओडे बेस तो जानिछो अमोनिया बेस ना बेस बड़ा अमोनिया बेस जानिछो जानो बेस जानिछो अच्छा मुझे अमोनिया रे प्ले फैक्टर के तो पानी मिसे दो बे पानी मिसे दो हो वाटर दबा कोन NH4OH yes or no loss no मु तो कौन कहछि जे NH4OH जहां ये से का जिंस ये से का जिंस बुझले को और एडे के दो 1 अरे कोन 1 क्लियर नॉट क्लियर अरे क्लियर कि नॉट क्लियर तो जो भी सब्सटेंस हो मन का देखो मन को हम कहते जिंक ऑक्साइड से बेस एकरे बेप जिंक ऑक्साइड और बेस एकरे रिएक्शन होछ बेस एकरे मेटल ऑक्साइड माने बेस नॉन मेटल ऑक्साइड माने नेचुरली एसिडिक मेटल ऑक्साइड होछ बेस नॉन मेटल ऑक्साइड इज व्हाट नेचुरली एसिडिक मेटल ऑक्साइड नेचुरली व्हाट बेस नेचुरली बेस तुम पढ़े बेस पढ़े और क्लियर बुझ पारे हला वाटर में पेट करो तो ये बेस एकरे बेप करबो के तो वाटर मिसर को जेडन अरे कौन होल तीन होल जिंक हाइड्रोक्साइड ये जाए ये सेका जिंस पर वाटर ही दहा वाटर भीतर पानी भीतर ना आर केते 2 RB2 माने के आर के दबो क्लियर कि नॉट क्लियर कुड़ा NH3 कौन नहीं এটা খুব ভুল লিখেছে এটা एक्चुअली अमोनिया प्लस वाटर NH4OH हो भूल लिखिए इसको से काट दो भूल लिखिए भूल लिखिए वो मन नहीं आता चलिए NH4OH बना तो NH4OH होने की टोटल कॉम्बिनेशन NH4OH होने की और हाइड्रोजन के तीन टच चारटा कुछ ना नहीं सीधा सिंपली वाटर ऐड कर दो सिंपली वाटर ऐड करो ना बुझले बुझ नहीं हमारा नहीं को अब कंफ्यूजन होबनी मेटल वैलेंसी एसिड रो बेसिसिटी अरे क्लियर नॉट बेस रो एसिडिटी सॉल्ट कर एसिड रो व्हाट बेसिसिटी बेस रो व्हाट उल्टा है मेटल वैलेंसी एसिड रो बेसिसिटी बेस रो क्लियर ना नॉट क्लियर नेक्स्ट कम टू salt actually अपने salt रो कौन बे रिएक्शन कले salt रो कौन एक्चुअली बे ता रैडिकल एक्शन बे रैडिकल चेंज न करो कोई बात के NS एड Na प्लस व्हाट सेल से रैडिकल चेंज ही चेंज रैडिकली चेंज तो रैडिकल चेंज करूची तो रैडिकल चेंज रो रैडिकल के चेंज करो ये एई पाटा चेंज होची पाटा चेंज होची देख सकते हो ये पाटा चेंज होची ए जो पाटा चेंज होची ये पाटा जो चेंज होची मतलब कोई बात कि NaCl plus AgNO that form AgCl plus NaNO ये देख এটা কোন চেঞ্জ হচ্ছে মানে Na টা Cl से लाइट लड़ी Na का साइज NO3 ये एक्सचेंज है और ये एक्सचेंज रैडिकल एक्सचेंज रैडिकल ही कोन एक्सचेंज है तो जो रैडिकल एक्सचेंज करबो रैडिकल एक्सचेंज करबो तो n फैक्टर केता हो n फैक्टर इक्वल टू देखो टोटल पॉजिटिव जे रैडिकल चेंज करू समस्त न जे रैडिकल चेंज करू तो 9 रो जे रैडिकल चेंज करू समस्त न
n factorial what total positive charge or negative charge तो r में तापी को आप वाला तापी वाला टोटल मतलब टोटल प्लस और माइनस वाली टोटल प्लस और माइनस और वाली तो बहुत गुड़े डाउट क्लियर हो देखो और तो जते क्लियर बुझिबो तो डाउट सते कोन আছে टोटल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज व्हाट फॉर मॉलिक्यूल्स मने करो मुझे जे NaCl होला अच्छा होतर मत प्ले कहलो मुझे जा रहा n फैक्टर कहता हूं फिर Na प्लस Cl माइनस कहता हूं अरे कौन प्लस 1 के माइनस 1 CaCl2 এটা n फैक्टर कहता हूं यानी कैल्शियम 2 प्लस कैल्शियम 2 अरे कैल्शियम बैलेंस 2 ना 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव टोटल ऑफ नेगेटिव है तो आइदर प्लस और माइनस आइदर प्लस और व्हाट जाले गोटे धरि जाले गोटे चुस्ती बेरियम फॉस्फेट कहता अरे कौन बेरियम और बैलेंस के दे तो बेरियम और बैलेंस के दे 2 into 3 अरे कौन टोटल केपटा प्लस से चेंज करछि टोटल केतना मान से चेंज करछि केतना परसेंट टोटल और चार्ज होछि प्लस 2 गोटे बेरियम ए मॉलिक्यूल रे टोटल बेरियम प्लस केता गोटे बेरियम रो प्लस 2 ए मॉलिक्यूल भितरे टोटल बेरियम प्लस केता अरे हेइटा ही कहबो केता 6 3 into 6 n factor equal to 6 पिला किने भूल कोन से तो सेटे तो मत सुनो सेटे तो मत ठीक है देखो किने बड़े बड़े किने पिला भूल कर केमते भूल कर दी देखो तो केते तुम माने कंफ्यूजन क्लियर हो गयो देखो माने करो को जे NaCl.KCl.6 वाटर 2 वाटर आर चार्ज कितने प्लस 1 आर चार्ज कितने ये प्लस 1 कितना प्लस आप1 ताप1 कितना 2 तो एंटर अच्छा हाइड्रोजन धरु कितने एठी वाटर धरु की वाटर रेडिकल चेंज करिवो की वाटर रेडिकल चेंज करिवो की चेंज ये करिवो तो माइंड रे से देखो कोन चेंज होता ये भी चेंज हो ये भी चेंज हो अरे बुझो चले को तो ये भी चेंज हो ये भी चेंज हो एटा इनपुट के तो अरे यस और नो कितना होगा मॉलिक्यूल मास पे इनपुट n फैक्टर बोलते इक्वल मास मारे उसका कौन है इक्वल मास कौन की मॉलिक्यूलर मास पे 2 ए देखो मुझे भूल कर मुझे भूल कर माने करो मु कभी NaCl.K2O.1 6 वाटर एरो सब काम मु रिएक्शन करबे सिल्वर नाइट्रेट सहित that produces AgCl or something and plus NaNO3 आज रिएक्शन करबे केटा केनो थ्रो plus KOH plus water KOH plus KOH हला मोटर पचर भी ए सब्सटेंस और इनपुट एजेनो के सहित देछि कोन NaCl देखो Ag टा AgCl कन्वर्टिंग तो मार्क करी Ag टा कोन AgCl कन्वर्टिंग तो मार्क करो Ag टा AgCl कन्वर्टिंग तले Ag टा नहीं का Ag टा मार्क करो Ag टा कोन AgCl कन्वर्टिंग Ag टा को पट्टा तो नहीं आर को पट्टा Ag नहीं आर को पट्टा Ag नहीं कोन तमे
अरे ये जो आज रिएक्शन कर एजी सेल जो देछि सिल्वर पार्ट एटा एजी सेल हिची एजी टा को आर को पार्ट नेछि सिल्वर पार्ट नेछि ना ए सॉरी क्लोरीन पार्ट नेछि सॉरी क्लोरीन पार्ट नेछि ना को नेछि अरे क्लोरीन पार्ट ही नेछि तो क्लोरीन एही पार्ट यानी कि एही पार्ट चेंज हिची ए पार्ट चेंज हिची एही पार्ट हिची चेंज हिची की चेंज ओनली दिस पार्ट तो ए जगह तो एन बेटर 2 3 कर दबो देखो हबो तक से कहबो अरे बुझले ना बुझले कारण ये रिएक्शन को लिखो देछि एजी सेल देछि एजी सेल फॉर्मेशन माने एतो दिख बाहर करबो एजी टा रिएक्शन एजी टा एजी सेल देछि दी एजी एजी सेल देछि तार एजी टा को पार्ट्स तो रिएक्शन देछि कि सोडियम टा NO3 टा को पार्ट रिएक्शन एने सब आकु दो ता को दो जा दो तो आकु दो ता को दो बुझले को पार्ट रिएक्शन देछि अरे कोन ए पार्ट दी ए पार्ट रिएक्शन कला एटे n फैक्टर के दाइबो टोटल पॉजिटिव चार्ज आर ना टोटल रो आर एडी यूज होबो की अरे एठी ये यूज होबो की केवल की यूज होबो अरे बुझला ना बुझले ना उधर कहबी तो मु को कहली मु मेन मोर फर्स्ट उद्देश्य कोन छ कहया रिएक्शन रे कोन होची देख पहुंचे वो पार्ट चेंज होची एन फैक्टर ता ऊपर ही डिपेंड करे तुम कॉन्सेप्ट बुझो चाहो ना फार्मूला बुझो चाहो कॉन्सेप्ट बुझो फार्मूला बुझले किछ हो करे खाली कंफ्यूजन हो करे कॉन्सेप्ट जिंस ठीक एक्यूरेट बुझिले तो कंफ्यूजन दूर हो जिवो तो कंफ्यूजन আছে এটা सीएल নাই না के पार्ट रिएक्शन करबे के से लोग ये केस को सीएल होची की क्लोरीन के लिए लिखा था मुझे केस लिखा था हां एटा केस से था कोई चीज लिखा था बुझे एटा कोई जरूरत नहीं था तले एटा बाइक भाई कोई था ना बुझले तो बुझले को तले ए पार्ट रिएक्शन दी आज तो ता सब मु कहे उद्देश्य कोन गोटे सॉफ्टवेयर से दीटा पार्ट अछि तो बोथ पार्ट रे कमांड करिवो बोथ पार्ट रे रिएक्शन टा हबो तले कोन हबो दीटा को चेंज देखा तो गोटे पार्ट रिएक्शन हबो तले गोटे का देखा एटा कोन बुझला गोटे सॉफ्टवेयर से दीटा इंच अछि तो गोटे रिएक्शन गोटे का रहउची ना दीटा का रहउची तो दीटा का रहउची दीटा का देखा गोटे होची गोटे का देखा सिंपल इंच ना एटा दीटा इंच अछि अनका एटा ए अछि बी अछि रिएक्शन ए ऊपर रहउची ए देखा बी रहउची बी देखा जो दे भी बहुत रिएक्शन होची वो देखा जीवा अरे क्लियर भी ना क्लियर तो पूछ रहा कौन सा ओके एंड मन करो कहबी द सोडियम बाइसल्फेट खाली बाइकार्बोनेट खाली एमती कहि देले एन पेट्रो बाहर की कष्ट जदि से सॉल्ट के बिहेव करिवो जदि सॉल्ट के बिहेव करिवो ये गोटे रेडिकल सॉल्ट के बिहेव करिवो ये सॉल्ट के बिहेव कले एन पेट्रो का माना तुम तो कहसर एक्सपोज तो अछि एक्सपोज का सॉल्ट के बिहेव करिवो ये रेडिकल चेंज रेडिकल पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज radical plus radical minus clear कि not clear बुझला ना बुझले को ए देखो से के इंटरेस्टिंग मने करो को भी H2SO4 plus KOH that give rise to KHSO4 plus मु पचर भी H2SO4 एडी इक्वल मात्रा देखो एडी n फैक्टर H2SO4 देखो तो 2 जन से तो लिख दो बोली तमे देखिबो H2 सल्फेट अछि ए कोन एडी सल्फेट तो एडी चेंज तले एटा देछि देखो एटा देछि जो एटा देछि आ देखो मार्कर कोन चेंज तो नीचे मार्कर जानि पे कोन चेंज अछि एटा हाइड्रोजन थिला केते दीटा एटा अछि केते गोटे तो केता हाइड्रोजन चेंज होता अरे कोनो हाइड्रोजन चेंज कितना है गोटे ही चेंज ना दीटा चेंज गोटे वेरी सिंपल एटा प्रोड्यूस करछि एटा को चेंज करछि कोन चेंज करछि हाइड्रोजन केतोडा गोटे एन पेट्रो गोटे
क्या बुझले थोड़े इक्वल मास के दबो 98/1 हां एटा 2 बुझला बुझला नहीं क्लियर है नॉट क्लियर देखि दो एग्जांपल 1 तो इक्वल मास के दबो 98 हो 98/1 98 आउट मन करो H2SO4 plus 2 KOH 2 KOH give rise to K2SO4 plus 1 balance is around और देखो H2SO4 देखो K2SO4 अरे yes और no अरे कौन चेंज ହେଇଛି दी हाइड्रोजन चेंज ହେଇଛି और दी हाइड्रोजन चेंज ହେଇଛି ना हाइड्रोजन दीटा थ्रेड नहीं किछि दीटा थ्रेड किछि नहीं बुझो जो बुझले तो 2 चेंज ହେଇଛି 2 चेंज ହେଇଛି ହେଲା it will be 1 it will be 2 so that depends upon what reaction yes मने कर कहबी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करछि HCl 3HCl देखि AlCl3 लॉस वाटर होबनी होबो कि नहीं को एटे कोन कलो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तीनटा होछला ये एल्युमिनियम चेंज ହେଇଛି एल्युमिनियम चेंज ହେଇଛି एटे कोन चेंज करछि एटे OH तीनटा थिला एटे किछ अछि कि किछ OH अछि कि केता बडे अरे कोन एटे मन करो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड plus NaOH that give rise to sodium metalbromate निचे बढ़िया से बुझ बुझले नहीं एटा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तला के OH तला के तीनटा एटा 1 OH व्हाट एटा तीनटा OH चारटा OH चारटा OH माने कोन तीनटा OH चारटा OH त माने कोन 1 OH accept 1 OH हले एन पर होबो केते अरे कोन बुझला ना बुझला नहीं अब भूल होबो की तो डिपेंड करछ का ऊपर मेन होची मेन होची क्लियर नॉट क्लियर ओके आउट देखो मन करो हाइड्रोजन 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 पे यदि चेंज करियो को H कन्वर्ट टू H प्लस तले गोटे प्लस चेंज होछ एटा इनपुट हाइड्रोजन इनपुट के दबो अच्छा H2 थिले गोटे हाइड्रोजन गोटे प्लस दी हाइड्रोजन थिले पर मॉलिक्यूल के देजो 2 H अरे पर मॉलिक्यूल 2 H H और 1 H2 ले 2 मन रखना अच्छा और केते बैलेंस ऑक्सीजन बैलेंस केते और को कम O2 माइनस इधर 2 और लेकिन O2 ले पर मॉलिक्यूल के देजो ओजोन ले पर मॉलिक्यूल के देजो 6 नाइट्रोजन 3 N2 6 4 मॉलिक्यूल 6 हो नाइट्रोजन 6 हो 4 मॉलिक्यूल चेंज है तो 3 चेंज हो ना बुझला नहीं अच्छा उतर मत मिले गलो एटा इक्विवेलेंस ऑक्सीजन के पाला अच्छा और मास के दे ऑक्सीजन मास के दे 16 जान 18
16 अरे कितने 16 तो 16/2 8 अच्छा ओट रो मास कितने 32 निश्चय 16 32 ठीक है सर कितना 32 बाय कितना 4 ओजन कितना 48 बाय कितना 6 what does it mean what does it mean ये बड़ा conclusion of interesting এটা ওর 8 ওর 8 ও 3 8 তার মানে কত তার মানে ইকুইভ্যালেন্ট মাস or n factor equivalent mass মানে মাইন্ড raised to equivalent mass does not depend upon number of atoms or ions or molecules केतोटा atom यूज करछो केतोटा molecule यूज करछो केतोटा ion यूज करछो ता ऊपर डिपेंड करू नाही that does not depend upon what number ऊपर डिपेंड करू नाही that depends only on the lens combining factor or n factor बुझियो बुझले को यदि valence is change n factor change otherwise not change are clear not clear ମୁଁ କହୁଛି ବିସ୍ତାର ମୁଁ ଦେଖେ କହୁଛି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହିବି ଏଟା ମତ କଣ କହିଲି ଇକ୍ୱିଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମାସ୍ does not depend upon એટલે ବଢିଆ କନସେପ୍ଟ ଟା ଏଟା ତମକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ୟୁଜ କରିବି मैक्सिमम ଜାଗାରେ ୟୁଜ କରିବି ଏଟା କନସେପ୍ଟ ଭୁଲିବନି କେବେ ତ ସବୁବେଳେ ସଦାବେଳେ ଦରକାର ହବ ଇକ୍ୱିଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମାସ୍ ମାନେ କି does not depend upon number of atom number of molecule number of ions बुझियो निको but depends on what balance depends on balance लिख दो equivalent mass does not depend upon number but depends on what balance balance super depends hello पिला मु कहबी MCl अछि MCl2 अछि MCl2 अछि तो क्वेश्चन पकड़े एतर दीटा पार्ट अछि कंपाउंडर दीटा पार्ट अछि माने मेटल अछि क्लोरीन अछि मेटल क्लोरीन तो क्वेश्चन पचारो एतर को पार्ट रो कंपाउंड टोटल कंपाउंडर को चली मु टोटल कंपाउंड एक कंपाउंडर को चली ए कंपाउंड टोटल को चली ए कंपाउंड रे को पार्ट रो मेटल ना क्लोरीन ना मेटल को पार्ट रो इक्विवेलेंट मास फिक्स होची और को पार्ट रो चेंज होची फिक्स करो को चेंज करो मते को एटे क्लोरीन के दो वैलेंस के दे -1 30 पे और वैलेंस के दे -1 केतो माने एटी नंबर को तुम देखिबो नाही नंबर को देखिबो नाही देखियो कहा को वैलेंस केतो हो बुझलो ना एटे बैलेंस के था 1 एटे बैलेंस के था 2 है ठीक है एटे बैलेंस के था आ बैलेंस क्या तोले एटे मेटल रे इक्विवेलेंस के दबो मेटल एटॉमिक मास 1 मेटल एटॉमिक मास 2 मेटल एटॉमिक मास तले के फिक्स के चेंज होला क्लोरीन टा फिक्स मेटल टा चेंज क्लियर नॉट क्लियर ता माने ये काई फिक्स होला नंबर ऑफ डिपेंड होला कि वैलेंस फिक्स तो ये फिक्स वैलेंस चेंज ये चेंज पिला खाली पाया होती कम करी कोटा फिक्स क्लोरीन टा फिक्स मेटल हबो चेंज ना बड़े कांसेप्ट है सब जगह यूज हो एटे नो सब जगह यूज हो गोटे बहुत जगह यूज हो अरे प्ले क्लियर कि नॉट क्लियर अच्छे बहुत दिन सब को हबो कि नहीं को तेणु करी पहले बर्तमान मु कहबी देखो एटा पीएम रे पता क्वेश्चन
What is the equivalent mass of sulfur in Cl2 H2C? এই দুইটা কম্পাউন্ডের সালফার কেতে কম্পাউন্ডার বুঝুন এই কম্পাউন্ডের সালফার ইকুইভ্যালেন্ট ভালোর মাত্রা কেতে হোয়াট ইজ দ্য ইকুইভ্যালেন্ট মাস অফ সালফার ইন দিস কম্পাউন্ড সালফার ইন দিস কম্পাউন্ড এই কম্পাউন্ডের এটা সালফার কেতে যদি কম্পাউন্ডরে গোটে আটম কিংবা রাডিকাল রই কোন পচারিব ইকুইভ্যালেন্ট পচারিব কোদর পচারিব এই কম্পাউন্ডরে কোন আছে সালফার আছে ক্লোরিন সালফার আছে ক্লোরিন আছে ওটা কম্পাউন্ড ভিতরে সালফার পচারে কম্পাউন্ডরে সালফার পচারে তুমি সেটা কেমতি বাহার করিব তুমি কাহাকু চয়েস করিব नंबर को ना चार्ज नंबर को ना चार्ज को नंबर देखिबो नाही नंबर को देखिबो सिंपली द एटॉमिक मास बाय बैलेंस एटॉमिक मास बाय बैलेंस किछि चिंता करबे एटॉमिक मास बाय बैलेंस सल्फर एटॉमिक मास केते सल्फर एटॉमिक मास केते सीधा लिखो था ये भी 32 2 बोले कि 32 टू 2 कर दो तो द टोटल एटम धरिबो टोटल चार्ज धरिबो टोटल एटम माने टोटल चार्ज बोल नहीं बुझने को सल्फर एटम केते 32 बाय केते को आ बैलेंस केते प्लस 2 बाय एडे केतो से 2 हो एडे क्लोरीन माइनस 1 चार्ज धीरे क्लोरीन माइनस 2 एडे केतो प्लस 2 जोड़ सल्फर प्लस 2 मत सब केतो एडे प्लस 1 चार्ज अरे टोटल चार्ज प्लस 2 एडी टोटल माइनस 2 0 0 मतलब कंपाउंड न्यूट्रल के दो अरे ये प्लस 2 ये भी माइनस 2 ना 0 0 के दो कितना 1 तो 32 के दो 16 लो बुझला ना तसर पीएम तो पचास तो कंपाउंड रे जदि पचारिबो किन मारिबो तार मास बाय व्हाट चार्ज मास बाय चार्ज टोटल क्या करी ओनली मास बाय चार्ज आउट जो मुझे मन करो सोडियम कार्बोनेट लो मुझे भी बेरियम फॉस्फेट बेरियम सल्फेट माने बेरियम फॉस्फेट मु पचारिबी ए कंपाउंड रे equivalent mass of barium 2 phosphate equivalent mass of phosphate with interpolation r के दो आगो एटा करिबा एटा के तुम्हारे मत को की कोइ परिबो एटा की कोइ परिबो टोटल कंपाउंड होची मॉलिक्यूलर मास बाय को होची टोटल प्लस और टोटल माइनस टोटल प्लस केते 6 अरे कोन 6 टोटल प्लस केते अच्छा ए कंपाउंड रे बेरियम के दबो मोती तीनटा देखिबोनी ओनली बैलेंस और only what balance तो ये क्या होगा बेरियम में 137 अरे ऊपर तो 3 गुना तले भी 3 गुना पड़ेगा ना कटी जो अरे बुझना ना बुझने को अतु के भी हैं बुझने को एक प्रॉब्लम ଅଛି କିନ୍ତୁ ତ କଣ କହିଛି ତ ଦେଖି कंपाउंडर के तो नंबर पे डिपेंड करछ का ऊपर बैलेंस ऊपर बैलेंस के देने बैलेंस के दे तो 30% टू वेरी सिंपल ओ जो तळे तीन ऊपर गली तो जदि मु टोटल एते केता बेरियम अछि तीनटा बेरियम यूज करे तीन गुणी मिली तो तीनटा बेरियम गुणी तीनटा चार गुणी तो तळे भी 3 गुणी मिली खाली को तीनटा बेरियम नहीं तो तीनटा चार जन बोली टोटल आटा माने टोटल चार जन बोली टोटल आटा माने
टोटल चार्ज दाम हां से देखा कथा तो दैट इज तो सल्फर दीटा सल्फर इनटू तो मु 2 नेबी तो तू क्या सुधा अछि तो मु माने 2 ना ये 2 ना को 2 ना ना को 2 ना को न आकुठु आकु अन्न माने कोन तू आकुठु ना को 2 नबु एत नबु कहीं तू नबु कहीं काटू कहीं एकत्र कोन करते नंबर ऑफ रे डिपेंड करू नाही ता कांसेप्ट अछि आकु बिल तो कहि दे तो कहि दे बोलसी जा कहि दे तू जिन कर मुंदी कहि दे नंबर ऑफ रे डिपेंड करू नाही डिपेंड करू का बैलेंस तो बैलेंस के तो किसी लगे ने वेरिएबल के कोन वेरिएबल बैलेंस के तू मास में तू इट सल्फर फॉस्फेट और मास के 31 64 95 क्या सो ये डिवाइडेबल कहा हो ये एग्जैक्टली को आर के एग्जैक्टली को तुम से आ तो मैं this by 6 equal to this by 2 this by 3 equal mark equal equal नहीं वे करो ता माने कौन बोलो ता माने एटे लास्ट कंक्लूजन हला जे इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉटन प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ सिंपली कॉटन साइड equivalent mass of salt equal what equivalent mass of cotton साइड सुनो मोडे कहर उद्देश्य होची मु जदी पचरी इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट तू फटाफट के भाग कर देखो एल्युमिनियम सल्फेट मिशन आलू का बैलेंस के 3 ना जानो 3 बोली 3 जानो जानो तो एल्युमिनियम के दाओ 27/3 मैथमेटिक्स हो देखो के दाओ 9 कितना बरे 9 सल्फेट रे कितना आंसर 96 बाय और सल्फेट रो 100 वे सल्फेट रो 96 बाय केते सल्फेट रो चार्ज लिखते ऑलरेडी 2 रेडिकल चार्ज मन रखबे 2 केतो बुझले नि जो केतो बाय 2 लगे तो ओके 48 तो माइंड रे सब ये रन जो 9 ये 48 मिसे आंसर आता अच्छा सेटा इजी ना एटा को नबो 22 स्क्वायर आकु मोलिकस बाहर को देबो 22 स्क्वायर को सेटा इजी तब देखो यार हम देख 9 आर लेते 48 48 सर 9 48 इजी कोटा अरे बुझला ना बुझले मु देखो जल्दी के फटाफट माइंड रे बनी सब मु कहबी एल्युमिनियम ऑक्साइड रो इक्विवेलेंट मास केते नॉट है अरे नॉट है केते 17 70 ना तो थे बुझले बुझलो ना जे अरे ये 98 ये 27/2 ये 16 बाय केते नंबर नुह नंबर दरकार नहीं करो अरे क्लियर और नॉट क्लियर बुझला ना बुझले नहीं तेणु करी मन कर मु जहां भी करी मु सोडियम फॉस्फेट मु एतर हटा दिकोण मास के दाओ तो फटाफट के देबो ठीक है 23 प्लस फॉस्फेट रे केते 90 केते होतडा 95 3 फटाफट तो इक्विवेलेंट मास ऑफ कंपाउंड इक्वल व्हाट इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉटन प्लस व्हाट बैलेंस अरे क्लियर की नॉट क्लियर अरे वो कैल्शियम क्लोराइड तुम इनका बात करो कैल्शियम बात करो क्लोरीन बात करो पूर्ण डिवाइड करो सीधा कैल्शियम के 40/2 20
ये 35.5 35.5 for 20 plus 35.5 mind run with calculation ହେଲା अरे बुझला ना ये गोटे पार्ट आउट एक्चुअली गोटे पार्ट नेक्स्ट क्लास रे पढे काले को जहा पढेली मु जस्ट 2 मिनिट होते डिस्कशन करू मात्र म रिकॉल करू तो माइंड फ्रेश है व्हाट वी टोल्ड इक्विवेलेंट मास का कैल्शियम रखने स्पोर्टी नो है कहते कैल्शियम रो 40/2 20 plus 35.5 into 2 only 30.5 only number नुह केवल बैलेंस मास बाय बैलेंस इक्विवेलेंट मास नंबर ऊपर फरक किछ पडुनी कम का फरक पडुची बैलेंस चेंज से चेंज अरे बुझले ना बुझले ये ला पाठ ओके मुद्रा आंसर मोड करू equivalent mass means what? If we take that amount of mass, the reaction will be complete reaction. That is the equivalent mass. So equivalent mass depends upon what? The combining factor or n factor of substance. N factor of the substance. And that depends upon what? The nature of the reaction of that substance. So what type of reaction show करुछि? So what reaction show करुछि माने तार reaction हवा द्वारा तार कोन चेंज होछि बुझले को तो माइंड रे फिक्स करबो यू हैव 6 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस कोन कोन मेटल एसिडिक बेस सॉल्ट ऑक्सीडेंट मेटल होची बैलेंस एसिड होची बेसिसिटी मींस bonate H plus or accept with 4 molecule per molecule base होची एसिडिटी बेस व्हाट तो स्ट्रक्चर टाइप हम सब बुझिया भी कम का दरकार नहीं बुझिया भी होला बेस और कहते एसिडिटी रिप्लेस with और accept what H plus salt or what total positive charge for molecule total charge for अरे क्लियर कि नॉट क्लियर ये गोटे कन्सेप्ट नेक्स्ट पॉइंट को मिली से रिएक्शन नेचर ऊपर डिपेंड करूची कोन चेंज देखो मार्क करी बडा हला तापर कोन कहली जे इक्विवेलेंट मास does not depend upon number depends upon what balance radical balance so equivalent mass equal what radical mass by balance okay hard fourth point होची तो equivalent mass of the compound equal to equivalent mass of a cation plus equivalent mass of cation नहीं क्लियर बुझला ना बुझल नेक्स्ट क्लास बुझले को नेक्स्ट क्लास फाइट ओके मैं बुझला ना बुझले ना डाउट हो